Hello friends, now from today onward we shall start the first chapter of 11th standard chemistry. We will start structure of atom. We also call it atomic structure. Structure of atom or atomic structure. It's the first chapter of CBSE 11th standard chemistry, and in fact it's first chapter of inorganic portion. Inorganic में count होता है. Now it all started with a question that how the matter is composed of. Any matter, if we talk about this chalk, if we talk about this board, if we talk about water or air all around us, these are matter. This matter exists in different physical state. This chalk is a solid, water is a liquid, and air all around us is a gas. This board is a solid. How this matter is composed of? If we keep on breaking this chalk into smaller particles, smaller and smaller particle, further smaller particle, then what would be the smallest particle look like? What is the smallest unit of any matter? It all started with this question. Dalton for the first time suggested a theory regarding composition of matter. How any matter is composed of, regarding this, Dalton suggested that the smallest unit of matter is called atom. Atom is the smallest unit of matter. If we keep on breaking this chalk into a smaller particle, smaller and smaller particle, then the smallest particle, that a unit particle, it would be called an atom. He said that atom can't be further divided. Atom is the smallest particle. There is nothing smaller than atom. It's indivisible. No further smaller particle would exist. एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है. एटम से ही कोई मिलाकर सारे जो मैटर है, सारे जो पदार्थ है, वो एटम से बने हुए. एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. एक ही एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके सभी एटम एक जैसे होते हैं. एटम ऑफ all the atom of an element are identical, while atom of different element, अलग अलग element की बात करें, atom of different element are different. This atom combine to form molecules. Atom of an element combine to form molecule. For example, two atoms of oxygen combine to form oxygen molecule O2. Two atoms of nitrogen combine to form nitrogen atom and nitrogen molecule N2. Two atoms of chlorine would combine to form chlorine molecule Cl2. Four atoms of phosphorus would combine to form phosphorus molecule P4. In this manner, atom of an element combine to form molecule. Atom of different element combine to form compound. Atom of different element combine in fixed ratio to form compound. अलग अलग एलिमेंट के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड एंड दिस वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अ एटम ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम फिक्स 2:1 के रेशियो में कंबाइन करके H2O बनाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ कंपाउंड.
It's formed by combination of carbon and oxygen in a fixed ratio of 1:2. इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में, फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं और CO2 कंपाउंड बनाते हैं. This was Dalton's theory regarding the composition of any matter, the first theory. It's said that an Indian philosopher, Kanad Rishi, he had also suggested the same theory in Sanskrit. इंडिया में भी ऋषि थे, कनद ऋषि उनका नाम था. उनने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की थ्योरी सजेस्ट करी थी जो डाल्टन ने कहा था. सिर्फ भाषा का ही फर्क है, देयर इज डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज ओनली. द पोस्टुलेट्स, ऑल द कंसेप्ट आर आइडेंटिकल. कनद ऋषि ने यह कहा था किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है. किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है. यह बिल्कुल वही बात है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. परमाणु अविभाजित है. एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. कनद ऋषि ने एटम को परमाणु कहा था और कहा था एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम से छोटा कुछ नहीं, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं. ये बिल्कुल वही बात है. एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एक ही पदार्थ के सभी परमाणु एक समान होंगे, अलग अलग पदार्थ के सभी परमाणु अलग अलग होंगे. एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. They are different in their physical and chemical properties. They are different in their look and appearance. This was Dalton's theory, or the theory suggested by Kanad Rishi. Although कनद ऋषि को कभी भी कोई रिकॉग्निशन, कभी भी कोई क्रेडिट नहीं मिला है. इट्स जस्ट बिकॉज देयर इज नो सॉलिड प्रूफ दैट ही हैड रियली सजेस्टेड दिस थ्योरी. ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे ये बिल्कुल साबित हो सके कि वाकई में कनद ऋषि ही थे और कनद ऋषि ने ही यह कहा है. लिखा हुआ मिलता है संस्कृत में, मगर किसने लिखा है यह नहीं पता. एक अंदाजे से बताया गया कि ये एज पर टाइम एंड एज पर द प्लेस प्रोबेबली इट मस्ट हैव बीन रिटन बाय कनद ऋषि. एनीवे दैट्स नॉट अ पॉइंट कि किसने लिखा किसने नहीं लिखा, किसको क्रेडिट मिला. बट डाल्टन की यह थ्योरी, कनद ऋषि की यह थ्योरी, यह फेल हो गई. फेल होने की खास वजह, जो डाल्टन ने कहा एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यह गलत साबित हो गया. एटम से भी छोटे पार्टिकल डिस्कवर हुए, एटम के अंदर ही डिस्कवर हुए. एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम को फर्दर डिवाइड करके भी दिखा दिया गया. और इस पूरे चैप्टर में हम वही चीज समझेंगे कि यह जो एटम है यह एग्जैक्टली कैसा है, किस तरह का है, हाउ द एटम टुक इट्स स्ट्रक्चर. हम कैसे एटम को कंसेप्चुअलाइज करते हैं. अब लेट मी मेक वन थिंग वेरी मच क्लियर. ये जो एटम है यह इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है, आज तक इसे देखा नहीं जा सका है और न ही शायद कभी भविष्य में इसको देखा जा सकेगा. Let me make this thing very much clear. Atom is such a small particle, its had always remained invisible and neither in future you would be able to see it. Whatever we are studying in this chapter, it's all conceptualization based on experimentation and their results. We had conducted, scientists had conducted lot of experimentation, and based on the results of those experimentation we had drawn few conclusions, and based on those conclusions we had tried to picturize, we had tried to imagine how atom would look like. ये इतना छोटा जो पार्टिकल है किस तरह का दिखता होगा, यह हमने इमेजिन करने का प्रयास करा है. Now, the first breakthrough
in this chapter was made by Sir J.J. Thomson when he discovered electron through his cathode ray tube experiment, through his cathode rays. जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है इस चैप्टर में वह सर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया है। सर जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब बनाई थी, उस कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेस डिस्कवर करी और उन कैथोड रेस के माध्यम से उसने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया और यह बात प्रूव कर दिया कि यह इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, एटम से काफी छोटे पार्टिकल है और एटम के अंदर से ही यह बाहर आ रहे हैं। नाउ what was the driving force? In fact, by that time electricity was discovered by Faraday. Faraday ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कर दी थी। Faraday ने Faraday सेल बना दिए थे और लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाने लगी थी और इलेक्ट्रिसिटी से काम भी करा जाने लगा था। इलेक्ट्रिक स्पार्क उस समय तक ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था। पॉजिटिव नेगेटिव रॉड और पॉजिटिव नेगेटिव रॉड को टच करने पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, एक चिंगारी निकलती है, उसके साथ में एक थोड़ी आवाज भी होती है। इस तरह की चीज उस समय पर डिस्कवर हो चुकी थी। फैराडे हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय दैट टाइम। और उस समय भाई आसमान में बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, बारिश के मौसम में एक बहुत भयानक एनवायरनमेंट कई बार बन जाना। कई बार तो एनवायरनमेंट बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्लेजेंट हो जाता है, मगर कई बार बिजली इतनी भयानक तरीके से चमकती है कि बच्चों को डरा देती है। कई बार बादल इस तरह से गरजते हैं कि डर लगने लगता है कि क्या हो रहा है। ऑल दिस नेचुरल इवेंट दे वेर यूज्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। ये जो प्रीस्ट लोग होते हैं, they used to use all this natural event in order to terrorize the peoples. जनता को डराते थे। वो कहते थे ईश्वर जब नाराज होता है तो ज्वालामुखी फटते हैं, ईश्वर जब नाराज होता है तो इस तरह से गर्जन होती है, इस तरह से बिजलियां चमकती हैं। ये जो बादल का चमकना है, ये जो बिजली का, बादलों का जो गरजना है, बिजली का ये जो चमकना है, ये तो पूरी तरह से दैवी प्रक्रिया है, यह तो ईश्वरीय प्रकोप है। जब मानवता भ्रष्ट होती है, जब मानवता गलत राह पर चलती है, तो ईश्वर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं इस तरह से। दिस यूज्ड टू बी सेड बाय दोस प्रीस्ट। जो पादरी लोग होते हैं, जो धर्म के आधार पर जनता को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस तरह की बात कहते थे। और उस समय एक साइंटिस्ट कम्युनिटी भी होती थी जो रियलिस्टिक अप्रोच रखती थी, जो वास्तविकताओं में विश्वास रखती थी, जो सिर्फ कहने में नहीं आती थी, जो ये कहती थी कि भाई वास्तविकता क्या है उसके पीछे जाया जाए। Among them, the person was Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, he was a scientist, और उसने सबसे पहली बार यह कहा कि ये फालतू बात कर रहे हैं पादरी लोग, ऐसा कुछ नहीं होता, देवी प्रक्रिया है, ऑल दिस अ फिजिकल फिनोमेना, एंड ही सेड दैट डेफिनेटली इट्स अ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। उसने कहा जिस तरह से हम लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और दो अपोजिट रॉड के मिलने पर, दो अपोजिट पोल्स के शॉर्ट होने पर हमको एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखता है और उस दौरान हमको कुछ आवाज भी आती दिखती है, वो एक बहुत मिनिएचर मॉडल है। मिनिएचर मॉडल होने की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क दिख रहा है और बहुत लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से वहां पर आवाज भी कम है। और आसमान में कुछ इसी तरह का फिनोमेना निश्चित हो रहा है, पर वहां पर ये जो फिजिकल फिनोमेना इट्स टेकिंग प्लेस इन वेरी ह्यूज अमाउंट, इन बल्क, इन लार्ज अमाउंट, और इतने अधिक अमाउंट में होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसी बहुत ज्यादा रोशनी भी दिख रही है और साथ में इतनी अधिक आवाज भी आ रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज चैलेंज्ड इन टू प्रूव दिस कंसेप्ट। उसको उस समय जो धर्म ग्रंथी रहे होंगे, जो पादरी लोग रहे होंगे, उन्होंने चैलेंज किया
क्या प्रूव करके दिखाओ, आप सिर्फ ये बात मत बोलो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा होगा कि आप भी प्रूव करके दिखाओ पहले जो आप बोल रहे हो। बट एनीवे, ये बाजियों का तो सिंपल सा कंसेप्ट था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक रियलिस्टिक पर्सन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन टुक दिस चैलेंज, he decided that he will prove this। फिलाडेल्फिया के चर्च के ऊपर चढ़ के उसने एक्सपेरिमेंट करा। सबसे पहली बात, वह उस जगह पर गया, अमेरिका के उस हिस्से में गया जहां पर आए दिन की बिजली चमकती थी, बिजली गिरती थी, बादल गरजते थे, बारिश होती थी। वो उसने एक बहुत ही भयानक वाला दिन लिया जिस दिन भयानक बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। उस दिन, उस रात को इनफैक्ट उसने पतंग बनाई, मेटल लगी हुई पतंग, और उसकी डोर के साथ में उसने वायर या उसके जो थ्रेड था उसको गीला रखा, उसके साथ में वायर रखा, मेड इट कंडक्टिंग, और उसने उस पतंग को ऊंचाई तक उड़ाया, इतनी ऊंचाई तक उड़ाया कि वह पतंग बादलों के करीब जाए जहां पर यह फिनोमेना होता है। He attached a key with the thread, और बताते हैं उसने बिजली चमकने के दौरान, जब बादल मिलते हैं और बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उस दौरान एक झटका भी खाया और अपनी उस की के द्वारा एक सायरन को बजाकर भी दिखाया। And with that experiment he demonstrated, बादलों में ऊपर जब बिजली के चमकने के दौरान, उनके गरजने के दौरान, इट्स अ फिजिकल फिनोमेना, इट्स अ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, टू अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड ये आपस में मिल रहे हैं और इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही यह फिनोमेना हो रहा है। और he really proved that it's a physical phenomena, it's a electrical phenomena, and that was really a turning point in the history of this science, in the history of physics। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, और यहीं से फिर आगे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट और ढेर सारी डिस्कवरीज हुई। एनीवे, इस एक्सपेरिमेंट पर भी काफी सारे विवाद हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ, आप डिस्कवरी चैनल पर देखेंगे और आप यूट्यूब पर कभी देखेंगे, देन यू विल रियली फाइंड, एक जगह तो बिल्कुल साफ कहा गया है कि शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट करा ही नहीं है। एंड उन्हें जो कहा कि क्यों नहीं करा, उन्होंने कहा कि यदि ऐसा एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन करता तो वो स्वयं मर जाता। इट्स जस्ट बिकॉज कि द लॉजिक इज कि बादल गरजने के दौरान, बिजली चमकने के दौरान, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज रिलीज्ड, उसमें जितनी एनर्जी होती है उतनी एनर्जी यदि नीचे ट्रेवल कर जाए और यदि उतनी एनर्जी का झटका किसी इंसान को लग जाए तो वो जीवित तो बच ही नहीं सकता, ऑन स्पॉट मरेगा। भाई, जब आसमान से बिजली गिरती है, वी यूज्ड टू पुट लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स। यदि वो लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगा हुआ हो और आसमान से गिरने वाली बिजली किसी इंसान पर गिर जाए तो वहीं का वहीं ऑन स्पॉट मर जाता है। मगर बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है उसने सिर्फ झटका खाया। तो कई लोग इस बात को मानते नहीं है कि भाई यदि आपको झटका लगता तो आप शायद जीवित नहीं बचते, आप निपट चुके होते। एनीवे, लेट्स नॉट फाइट ओवर दिस ऑल्सो। हो सकता है देयर मस्ट बी सम रियलिटी इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आगे ये बात सॉलिड तरीके से प्रूव हुई कि हाँ, वाकई में जो आसमान में होता है वो एक फिजिकल इवेंट ही है, वह एक इलेक्ट्रिकल इवेंट ही है। और इसे आप देवी प्रक्रिया मान ले, जनता को डराने के लिए इस्तेमाल जरूर कर ले, ये बात ठीक है, वी डोंट ऑब्जेक्ट ओवर इट, बट डेफिनेटली इट्स अ फिजिकल फिनोमेना। अब फिर पादरियों की एक अलग बात चालू होगी कि ठीक है, यदि यह फिजिकल इवेंट है, यदि यह एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है, तो आप इसे करके दिखाओ, आप इसे लेबोरेटरी में करके दिखाओ। जिस तरीके से आसमान में बिजली चमकती है, जिस तरह से बादल आसमान में गरजते हैं, क्या ऐसा इवेंट, क्या ऐसा फिनोमेना लेबोरेटरी में
करवाया जा सकता है। एंड दिस चैलेंज वॉज टेकन अप बाय सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने बस एग्जैक्टली काम इसी लाइन पर करना चालू करा। शायद जे थॉमसन का कोशिश यही रही होगी कि यदि बादलों का गरजना, बिजली का चमकना एक फिजिकल फिनोमेना है, तो जो फिजिकल कंडीशंस, जो फिजिकल एनवायरनमेंट आसमान में ऊंचाइयों पर है, जो 2-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वैसा ही कुछ एनवायरनमेंट, वैसा ही कुछ कंडीशंस को लेबोरेटरी में बनाई जाए और वैसी ही कंडीशंस को लेबोरेटरी में बनाकर क्यों ना वह फिनोमेना को लेबोरेटरी में करवा कर दिखाया जाए और इन प्रीस्ट लोगों को, इन पादरियों को जवाब दिया जाए कि यदि यह ईश्वरीय प्रक्रिया है, यदि यह ईश्वरीय प्रकोप है, तो मैं भी ईश्वर हुआ, मैं भी इस चीज को लेबोरेटरी में करके दिखा सकता हूं, मुझे भी ईश्वर का सम्मान मिले। सर जे थॉमसन ने सबसे पहली बार शायद यही बात सोची और वह एक्सपेरिमेंट करा। नाउ व्हाट, उसने सबसे पहले क्या क्या सोचा? जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, सबसे पहले प्रेशर कम होता जाता है। अर्थ सरफेस पर प्रेशर इज 1 atmosphere. As we go above, this pressure decreases and उसने एक इमेजिन करने की कोशिश करी होगी कितना प्रेशर है, वो प्रेशर को कम करता गया होगा। Beside it, we do not have on Earth's surface, near Earth's surface, we have gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. But as we go above the height, this oxygen and nitrogen, their density, their amount decreases. Carbon dioxide तो बिल्कुल ही गायब ही हो जाती है। हाइट पर we find gases like hydrogen, helium. हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस होती है ऊंचाई पर। He thought that ये जो बादल है, जब यह गरज रहे हैं तो अपोजिटली चार्ज्ड होंगे और अपोजिटली चार्ज रहते हुए इसमें ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस रहता होगा। ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब ये एक दूसरे के करीब आते होंगे, उस दौरान शॉर्ट सर्किट सॉर्ट ऑफ फिनोमेना होता होगा और उस दौरान यह लाइटनिंग फिनोमेना एंड इस तरह का फिनोमेना बनता होगा। एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का एनवायरनमेंट उसने लेबोरेटरी के अंदर सिमुलेट करा। ही टुक अ ट्यूब, वी कॉल इट कैथोड रे ट्यूब। हम इसे कैथोड रे ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम रेस को डिस्कवर करेंगे, उन रेस को हम कैथोड रेस नाम देंगे। इस ट्यूब के अंदर he kept 2 rods at a separation, 2 metal rod separation पर रखी। At that time he kept a separation of nearly 1 meter. यह जो ट्यूब है लगभग 1 मीटर की ट्यूब थी। And he connected both this rod with a DC battery and he applied huge potential across the 2 rods. यह जो ट्यूब थी, इस आउटलेट को उसने सक्शन पंप से कनेक्ट कर दिया
he connected here suction pump. This suction pump would suck all the air, it would withdraw all the air, maximum amount of air from the tube. First of all, he filled the tube with gas like helium. हीलियम गैस ट्यूब के अंदर रखी और ट्यूब के अंदर दो प्लेट बना दी. एक प्लेट पर उसने नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, मतलब उसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया. बैटरी के नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करा, नेगेटिव पोटेंशियल दिया. और सामने अपोजिट प्लेट को उसने पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करा, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया. दिस नेगेटिव टर्मिनल वी कॉल इट कैथोड. बैटरी का है जो नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम कैथोड कहते हैं. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को हमने कनेक्ट करा है वह भी नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा. यह नेगेटिव टर्मिनल ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर पुश कर देगा और यह जो इलेक्ट्रोड है वी कॉल इट कैथोड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, नेगेटिव टर्मिनल को वी कॉल इट कैथोड, while this is the positive terminal of the battery. यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है. जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इट वुड एक्वायर पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज टर्म्ड एज एनोड. इलेक्ट्रिसिटी के यह सारे कंसेप्ट ऑलरेडी फैराडे दे चुका था, समझा